Hello, I hope you all are doing well. In today's video, we're gonna talk about mocks. Well, before starting with the video, I wanna give you a small disclaimer. We are coming up with an all India mock. The date or the timeline of the mock will be from 18th of March at 2 o'clock because आपका इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप शाम को बैठकर 2 hours दे सकते हैं till 19th of 4 o'clock. ये मॉक आपको क्यों देना चाहिए? फॉर थ्री मेन रीजंस. फर्स्ट इज द इंटरफेस ऑफ द मॉक इज अ रेप्लिकेशन ऑफ योर एक्चुअल पेपर. Second, it will show you the areas that you need to revise more, what all things you have done or what all things you are completely blank about. So it will give you a good planning to prepare for. And third and foremost, it will show you where do you stand in the crowd. So without wasting any time, make sure you attempt this mock. It's completely free and definitely ACE IPM students should attempt it so that we can make a proper plan for your preparation ahead. Okay, thank you. Let's continue with the video. Hello, I hope you all are doing well. In today's video, I'm going to talk about mocks. Well, I have divided this video into 3 parts. The first part would be importance of mocks and what are the common mistakes you may be committing while attempting the mock before or after the mocks. Second would be ideal number of mocks that you need to attempt. And third would be the analysis part. How do you analyze mocks to increase your mock scores? Let's start with the very first part. What is the importance of mocks? So, unlike your board examinations, HIPMAT or any competitive examination is all about your test temperament. No matter if you have completed 100% of the syllabus, still you wouldn't be able to perform if you are not able to handle that pressure that you have in your actual paper. And I think so many of you would know or would be able to relate it to it if you are a dropper or someone. You would know that कि यार हमने काफी सारा पढ़ा था, पेपर के बाद भी ये पता चलता है यार काफी सारी चीजें तो आती थी बट एक्चुअल पेपर में प्रेशर बहुत आ गया. तो इस प्रेशर को हैंडल करना, उस पेपर में कैसे परफॉर्म करना है, ये सब चीजें हमें मॉक सिखाती है. एक मॉक को मैंने पहले भी इस एनालॉजी से समझाया है. तो जैसे आपका एनुअल डे होता है, एनुअल डे के एक दिन पहले आपको ड्रेस रिहर्सल करवाते हैं ताकि आप उस एक स्क्रिप्टेड वे में, इस ऑर्डर्ड वे में आप चीजें परफॉर्म कर सकें. कुछ एक छोटे मोटे जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, कुछ एक एक्शन है, वो सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो, इसीलिए वो ड्रेस रिहर्सल होता है. प्रैक्टिस मैचेस क्यों होते हैं? ताकि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो पास स्ट्रैटेजी, जो आप ऐसे करके इधर पास देंगे या मैन टू मैन खेलेंगे, ये सब की जो प्लानिंग आपने बनाई थी वो आप एक्चुअल पेपर में कर पाते हैं कि नहीं, जो एक्चुअल गेम में हो पाता है कि नहीं, वही सब चीजों के लिए तो मॉक्स बने हुए हैं, वही सब चीजों के लिए प्रैक्टिस मैचेस बने हुए हैं, राइट. सो एक प्रैक्टिस मैच, एक मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए. नाउ दैट यू नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, don't commit these common mistakes, and this is why this video is, so that from this day itself you know that you're not falling into any of the common myths or common mistakes that students are under while preparing for IPMAT. The first and foremost common mistake is they wait for the full syllabus to be completed before attempting a mock. मुझे अभी भी काफी सारे बच्चे मैसेज कर देते हैं कि भैया मेरा इतना सिलेबस रह रहा है तो आप मॉक अटेम्प्ट करने को क्यों कह रहे हैं. देखिए, आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल पेपर में आप कभी भी वैसे भी 100% ऑफ द क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. आई अंडरस्टैंड आपका 30, 40, 50% ऑफ द सिलेबस रह रहा है, तो आप पेपर में मॉक में जाइए, बैठिए 2 hours, जो चीज आपको आती है वो सॉल्व करिए, जो चीज नहीं आती वो सॉल्व मत करिए. एटलीस्ट आप एक स्ट्रैटेजी तो बना पाएंगे, एटलीस्ट आप एक मॉक प्रेशर तो हैंडल कर लेंगे, एटलीस्ट वो 2 hour का टाइमलाइन में बैठने की आदत तो डाल लेंगे. वो स्टैमिना ही नहीं होगा अभी तो काफी सारे बच्चों का. तो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वेरी लास्ट डेट to finish your syllabus and then start attempting mocks. Start immediately after a board examination gets over and attempt a mock while you are parallelly finishing your syllabus. थोड़ा थोड़ा आप रास्ते में चीजें करते जाइए. लेट्स से आपको इसी मॉक के अटेम्प्ट से आपको पता चल जाए कुछ एरिया में रिविजन करना है, तो आपका रिविजन प्लस रिमेनिंग ऑफ द सिलेबस प्लस मॉक साथ में चलना चाहिए. So don't wait for the last date to finish your syllabus and then start attempting mock. Mocks are important and they need good time gaps. So you need to start attempting mocks as early as possible. Second common mistake that students commit is taking mocks very casually. I've seen many students starting a mock but ending it between while attempting. Like जैसे QA ऐसे सेक्शन किया, QA MCQ के बीच में ही मॉक बंद करके चले जाते हैं. और कुछ लोग तो इतने नालायक होते हैं, एक सेक्शन करेंगे फिर नाश्ता करके आएंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर एक सेक्शन करेंगे. Are you kidding me? You don't have to treat it like this, right? Mock is meant to give you that pressure. आपको ये समझना होगा कि हर पेपर में जो आप अलग अलग प्रेशर फेस कर रहे हैं, वो प्रेशर आपको एक सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रहा है एक्चुअल पेपर के लिए. वो प्रेशर आप एक्चुअल पेपर में भी फेस करेंगे. लेट्स से आपने अभी थोड़े दिन पहले कोई मॉक दिया होगा और उसमें स्टार्टिंग के पहले 5-10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं बने, तो वो 5-10 क्वेश्चन को ना बनने के बाद भी अपना टेम्परमेंट, वो कामनेस कैरी करनी है कि आप 8th क्वेश्चन को खोलो और ध्यान से पढ़ो. ठीक है,
अगर वो टेम्परमेंट नहीं डेवलप होगा तो एक्चुअल पेपर में भी यही होगा कि पहले 5 क्वेश्चन नहीं बने और शायद आप अगले 10 क्वेश्चन के लिए एनर्जी ही नहीं रह पाए, आप इतने प्रेशर में आ गए कि फिर आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो वो टेस्ट टेम्परमेंट तभी डेवलप हो सकता है जब आप उस प्रेशर को एक्टिवली फेस करें, और इसीलिए वो मॉक के वक्त में वो जो 2 आवर्स है उसमें आप सुपर फोकस रहें। वो फोकस इतना इंपॉर्टेंट है कि आई कांट टॉक मोर अबाउट दैट। आपको चीजें आती भी होंगी ना, अगर वो फोकस नहीं है, वो टेम्परमेंट झेलने की आदत नहीं है, तब भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो हैव दैट प्रेशर। इवन वन ऑफ माय स्टूडेंट यूज्ड टू सिट इन अ कंप्यूटर एरिया, वो एक कैबिन वाली जगह पे बैठ जाता था, पंखे बंद कर देगा, गर्मी में पेपर देता था। वो अलग अलग टेम्पर में अलग अलग एनवायरमेंट्स क्रिएट करता था कि यार ये एक्चुअल पेपर में अगर ऐसा हो गया तो इन सब चीजों से मेरा फोकस डेविएट नहीं होना चाहिए। तो आपको भी यही करना है कि चाहे कितना भी प्रेशर हो, मैं पूरे 2 घंटे लगातार सुपर फोकस रहूंगा। आपके फोकस को आप शॉर्टन कर सकते हैं। अभी आप बहुत वाइडली सोच रहे हैं कि 2 आवर्स का पेपर है, ऐसा नहीं। 2 आवर में 3 सेक्शन हो गए, 3 सेक्शन को अलग अलग पेपर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उस सेक्शन में, उस पर्टिकुलर फ्रेम में जो सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है उस पे फोकस रखो। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, don't have any sort of a stereotype, prejudice, biased thought. Just focus on that particular time frame in that particular question. Stay focused for that 2 hours. Stay serious. Have that energy, super high energy to perform super high. Okay, super best. Let's come to the third common mistake that students commit: not having a proper strategy. Many people just go and casually start solving it. अच्छा चलो ठीक है, आता है, पढ़ते आता है, but वो जाएंगे और बस solve करने लग जाएंगे। You need to realize that mocks are meant to create a proper game plan in your head, a proper strategy so that you can perform at your best. एक प्रॉपर गेम प्लान होगा तभी तो आप एक्चुअल पेपर में वो एक आइडियल कंफर्ट में रहेंगे। अब गेम प्लान से मेरा मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब क्या है, तो हम अलग अलग बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्यूए एंड देन बीए। अगर मैं क्यूए स्ट्रैटेजी की बात करूं तो एक मोस्ट कॉमन क्यूए स्ट्रैटेजी होती है कि हम राउंड ऑर्डर फॉलो करेंगे। मतलब राउंड स्ट्रैटेजी होती क्या है कि आप पहले वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बहुत इजीली दिख गए, मतलब आपने स्टार्ट किया क्यूए सेक्शन, तो जो आता है वो फटाक से सॉल्व किया, जो नहीं आता है उसको उसमें कुछ, जैसे पहला क्वेश्चन आपको आता है आपने किया, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आता है लेकिन लेंदी है। लेंदी मतलब एकदम इमीडिएटली 30-40 सेकंड या 1 मिनट में आंसर नहीं आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। और फिर एक थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन आता है जो आपको देख के लगता है यार ये चैप्टर तो मैंने किया नहीं है, या तो ये चैप्टर का मैंने चैप्टर किया हुआ है लेकिन तब भी आता ही नहीं है, बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, तो उसे हम राउंड 3 में डाल देते हैं। तो पहले राउंड में हम वो देखते हुए जाएंगे कि हमें कौन कौन से आते हैं वो करते जाएंगे, जो आते हैं लेकिन लंबे उन्हें मार्क कर देंगे, और जो नहीं आते उनको लीव करना है। There is another strategy called topic wise strategy. Many people follow topic wise. That is, जो मेरा टॉपिक स्ट्रेंथ है मैं उन टॉपिक से क्वेश्चंस को पहले करूंगा, जो वीक है मैं उनको बाद में करूंगा। तो इट्स टोटली अप टू यू। Any strategy you can follow, any strategy you can create, but it's your strategy that you have to make. Let's talk about VA strategy first. अगर मैं VA strategy की बात करूं तो many people have, it's my common recommendation for QA would be round strategy. For VA would be the first strategy that I'm talking about, कि पहले मैं RC सॉल्व करूंगा, फिर बाकी ऑर्डर, मेरा एक ऑर्डर होता है, मैं वो ऑर्डर की ही बात करता हूँ डायरेक्टली। तो मैं पहले RC सॉल्व करना पसंद करता हूँ, फिर मैं ग्रामर सेक्शंस में जाता हूँ, फिर मैं इडियम्स एंड फ्रेजर वर्ब्स वाले सेक्शन में जाता हूँ जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिर मैं पैरा कंप्लीशंस पे जाता हूँ, फिर मैं पैरा जंबल्स पे जाता हूँ। तो मेरा रीजन क्या हुआ RC से स्टार्ट करना, क्योंकि वो एक हायर टाइम स्लॉट डिमांड करता है, वो एक 10 से 15 मिनट मांगता है, तो मैं उसको लेट नहीं रखता। अगर मैं उसे लास्ट में छोड़ दूंगा तो क्या पता मेरे पास टाइम ही ना बचे और मैं पूरा RC रीड करके कॉम्प्रिहेंड ही ना कर पाऊं। तो मैं एक फिक्स टाइमलाइन जैसे 10 से 15 मिनट का एक टाइम डिवाइड कर देता हूँ, जहां पे मैं दोनों RC फुल एनर्जी के साथ अच्छे से सॉल्व करता हूँ और मस्त उसके आंसर निकाल के मैं नेक्स्ट ग्रामर पे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि ग्रामर रिलेटिवली बेटर होता है मेरे दिमाग में, मतलब मुझे लगता है सॉल्व करना। देन मैं वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस या तो आते हैं या तो नहीं आते हैं, तो इट्स इजी टू शिफ्ट बिटवीन दोस सम्स। देन आई गो फॉर क्वेश्चंस लाइक पैरा कंप्लीशंस, एंड देन इन द एंड आई ऑलवेज कीप पैरा जंबल्स। रीजन टू कीप पैरा जंबल्स इन द एंड इज क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है मैनेज करना। टीटा टाइप होता है, कुछ भी हो सकता है, एक आंसर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो पैरा जंबल्स लास्ट में रखना मुझे अच्छा लगता है। तो ये ऑर्डर ऑफ टॉपिक से आपका खुद का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड। नाउ दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, और बाकी लोग इसमें भी अलग अलग रखते हैं, कुछ लोग RC लास्ट में कर लेते हैं, कुछ लोग पैरा जंबल्स पहले करते हैं, तो सबका अपना अपना है ना। तो यही चीज आपको रियलाइज करनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग मॉक्स। आप 4-5 मॉक्स दीजिए और अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व करिए, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करिए, अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करिए, राउंड कर लीजिए, फिर टॉपिक वाइज करके देख लीजिए, फिर इसमें RCs का ऊपर नीचे करके देख लीजिए, DI पहले करना है, DI बाद में करना है। तो ऐसे 3-4 मॉक्स दीजिए और अपने आप से पूछिए किस ऑर्डर से आपको बहुत अच्छा कंफर्ट फील हुआ। जो भी है वो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट इवन नो, इट कुड बी योर ओन स्ट्रैटेजी, XYZ स्ट्रैटेजी, राइट। तो जो स्ट्रैटेजी आप अपने लिए बॉइल डाउन करते हैं वो आप अपनी बना लीजिए,
फिर 4-5 मॉक्स के बाद अगले 10-15 मॉक्स तक उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, बिल्कुल दिल से अच्छे से, ताकि आप एक्चुअल पेपर में भी सेम स्ट्रैटेजी के साथ परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो हैव अ स्ट्रैटेजी, some game plan, some scripted idea of in which order what you're going to do in your paper. It shouldn't be very raw, like you're solving 20 question in a sheet. It shouldn't be like that at all. क्योंकि अगर वो एक आइडिया होता है ना, तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब मेरे पास एक आइडिया होता है कि मैं किस चीज को किस ऑर्डर में कैसे जाऊंगा, तो मेरे पास रिलेटिवली प्रेशर कम हो जाता है मेरे ऊपर। तो ठीक है, तो तीसरी कॉमन मिस्टेक मत कमिट करना कि स्ट्रैटेजी ही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट, एंड दैट इज नॉट एनालाइजिंग मॉक्स। मेनी पीपल कमिट दिस मिस्टेक इज कि वो पेपर दे देंगे, लेकिन उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे कि भाई कम मार्क्स आए ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता है, बस इसको छोड़ो। कुछ लोगों के लिए वर्क करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड, यू नीड टू एनालाइज मॉक्स। एनालिसिस विल इंक्रीज योर स्कोर. That's where the answer comes to the fact that how do I increase my mock scores? You have to do analysis of your mocks. Let's talk about analysis directly now. Coming to the next part of the video. How do you analyze mock? What is that analysis that everyone or I talk about? Now, after attempting your actual mock, you need to divide the questions into two categories where you're facing conceptual gap or execution gap. When I talk about conceptual gap, कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखा लेकिन आपको कंसेप्चुअली पता ही नहीं था, तो दैट्स द एरिया यू नीड टू गो एंड स्टडी नाउ। लेट्स से मेरे को टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देख के पता ही नहीं कि टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी था, एग्जिस्ट करता है, राइट? तो ये दिखाता है कि आपको कंसेप्चुअल गैप है, ये टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है। एंड देन द सेकंड इज एग्जीक्यूशन गैप। एग्जीक्यूशन गैप क्या होता है? वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है जो हम फेस करते हैं। दैट इज चीजें आती थी बट पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाए, प्रेशर की वजह से, टाइम प्रेशर की वजह से। अब एग्जीक्यूशन गैप 4 तरीके से कम हो सकता है। पहला है कि आप अपने मॉक्स को कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करते जाइए, मतलब पहले तो मॉक की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। मॉक के साथ साथ सेक्शनल दीजिए, टाइम टेस्ट दीजिए, क्योंकि जनरली अगर एग्जीक्यूशन गैप है, एग्जीक्यूशन गैप क्या है कि मुझे क्वेश्चन आता था बट मैं पेपर के मॉक के अंदर नहीं सॉल्व कर पाया, आते हुए भी नहीं कर पाया, जैसे एनालिसिस में करने बैठा आराम से आ गया। तो वो चीज कैसे कम होती है? पहला कि आप अपनी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी, टाइमर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी, जहां टाइमर टेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी, सेक्शनल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। दूसरा ये है कि एक्टिव रिवीजन करिए। एक्टिव रिवीजन ये हो गया कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है ना, उसको एक्टिवली देखिए। मॉक के एक दिन पहले या कुछ आवर्स डिसाइड कर लीजिए जहां पर अपने सारे नोट्स, सारी चीजों के साथ गो थ्रू करेंगे। वो एक्टिव रिवीजन आपको हेल्प करेगा सबकॉन्शियसली क्लिक करने में, जो क्वेश्चन पूछा है, जो सामने है, उससे अल्टीमेटली ना चीजें जल्दी याद आएंगी, तो उस वक्त पे परफॉर्म भी अच्छे से कर पाओगे। थर्ड इज कि नाउ दैट यू आर एक्टिवली रिवाइजिंग फ्रॉम इट, आपको ये भी करना होगा, एक आइडिया छोड़ दीजिए कि रिजल्ट क्या होने वाला है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स अंडर द प्रेशर दे आर थिंकिंग यार मॉक्स में नंबर कम आएंगे, मेरा तो हो नहीं पाएगा, या उनके दिमाग में और थॉट्स है कि फैमिली को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, या थॉट्स लाइक यार 1 साल दे दिया है मॉक्स में नंबर नहीं है। तो ऐसी सब चीजों के, ऐसे सारे थॉट्स को आपको सामने से हटाना होगा। आपका गोल उस वक्त पे सिर्फ परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। क्या आपने कभी महेंद्र सिंह धोनी को इस बात के प्रेशर में देखा है जब वो कीपिंग करता था तो कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है? नहीं ना, उसका फोकस तो स्टंप्स पे, उसका फोकस उस बॉल को फेंकने में है, राइट? तो इस तरह का फोकस जब बच्चे के अंदर होता है ना, इस तरह के जो बायस थॉट से ऊपर, जो पीछे की चीजें, जो नॉइसेस है, अगर उससे आप दूर रह पाते हो और सिर्फ पेपर पे फोकस करते हो, तो अल्टीमेटली आप कर पाओगे जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। एंड फोर्थ इज एज सिंपल एज practice a lot. I personally feel that the solution to everything is the more I'm practicing, more confident I am. The more confident I am, the better I'm able to perform. ठीक है, तो these are the 4 ways you can decrease this execution gap. The gradually you do work on these 4 areas and ultimately your mock score would increase. Mock score को भी step wise ही increase करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, 10-10, 20-20 नंबर के जंप्स लेने हैं। आपको गोल ये नहीं बनाना है कि मैं 50 से 150 ले आऊं, 50 से 70, 80, 90 ऐसे जाना। ठीक है, तो that's the execution gap you need to fill. नाउ दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट एनालिसिस के अंदर मैं थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ। आप एक प्रॉपर, आपके एक एनालिसिस एरियाज होने चाहिए। 5-6 मॉक्स के बाद एक पैटर्न भी दिखने लगता है कि यार पिछले 5 मॉक्स से ग्रामर में ही सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो एक एरियाज होते हैं जो आपको हाईलाइट करते हैं कि जाके बैठना है, एनालिसिस के वक्त पे ये दिखता है तो जाके बैठना है और ग्रामर सॉल्व करना है अच्छे से, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके सॉल्व करना है। ऑल्सो एनालिसिस में ये भी देखना है कि क्या मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाया जो मैंने बनाई थी, जो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था, क्या मैं उस स्ट्रैटेजी को स्ट्रांगली होल्ड कर पाया, क्या मैं उसके साथ कैरी कर पाया थ्रू आउट द 2 आवर्स में, उस टेम्परमेंट, उस एनर्जी को थ्रू आउट 2 आवर्स कैरी कर पाया। वो रियलाइजेशन इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। हाँ, नहीं कर पाया तो अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं राउंड 1, राउंड 2 में जल्दी शिफ्ट हो रहा हूँ। ये जब चीजों पे आपको कॉन्शियसली, एक्टिवली वर्क करना होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर द एनालिसिस पार्ट। Stay consistent with the analysis. Gradually your mock score will increase. Have no doubt about that. और mock scores fluctuating भी होते हैं क्योंकि टेस्ट टेकर का भी एक ऊपर नीचे का हो जाता है ना, कभी कभी मुझसे भी टफ मॉक बन जाते हैं।
कुछ कुछ ईजी भी बन जाते हैं। तो वो फ्लक्चुएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने चीज़ें को मैनेज कर लिया जो आपने सोचा था। लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको एनालिसिस में देखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने वो क्वेश्चंस छोड़े जो मुझे आते नहीं थे? बिकॉज एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि मैं उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट कर देता हूँ जो मुझे आते नहीं थे। यही सबसे बड़ा एनालिसिस का एरिया होता है। अगर मैं वो क्वेश्चंस नहीं छोड़ रहा हूँ तो मैं उन क्वेश्चंस का टाइम खा रहा हूँ जहां पे मैं सही कर सकता था। तो मेक श्योर करो, पेपर इज मोर इंपॉर्टेंट अबाउट लीविंग द सम्स यू डोंट नो एक्चुअली, एंड आईपी मैट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑन दैट एरिया। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप एनालिसिस ये भी जाने कि अच्छा यार, ये 45 क्वेश्चन के अंदर ये 7-8 क्वेश्चन तो ट्रैप्स थे, इन्हें तो छोड़ना ही था। और ये चीज आपको एक्टिवली याद दिलाना है कि यार ऐसा कुछ लैंग्वेज आई या आउट ऑफ द ब्लू आउटलायर हो तो डोंट वेस्ट टाइम, डोंट एक्सपेरिमेंट, इट्स नॉट समथिंग यू कैन टेक ऑन। आपको छोड़ना है इमीडिएटली, तो वो छोड़ने की एनर्जी कॉन्फिडेंस लेके आनी है। ठीक है, this is it for the analysis part. Let's talk about the ideal number of mocks. I may have changed the order of the part, but okay, let's talk about the ideal number of mocks for someone. It could be any number of mocks could be an ideal, but for me going till 15-20 mocks should be good enough. मतलब ये भी नहीं है कि 5 मॉक्स देके पेपर देने बैठ जाते हो, एटलीस्ट 10 से 15 मॉक्स दीजिए, वो आपको काफी हद तक प्रिपेयर कर लेगा। 15 इज द आइडियल नंबर फॉर मी। You may, if you are a dropper, then it's fine. You can attempt 20, 30, 50 mocks. I don't have an issue, but don't go till 50. 30, 40 mocks is more than enough. More importantly, don't solve just mocks of one university. मतलब सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के मॉक्स मत लो। अगर आप ACE-IPM स्टूडेंट भी है तो मैंने पहले भी रिकमेंड किया, अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि एक और किसी इंस्टीट्यूट के मॉक्स परचेस कर सकते हो। 2 इंस्टीट्यूट के मॉक्स होने का फायदा ये होता है कि आप सिर्फ एक ही इंसान के बनाए हुए मॉक्स नहीं फॉलो कर रहे हो, क्योंकि क्या है कि आपको याद रखना है जितना अच्छा चैलेंजिंग मॉक है उतनी अच्छी बात है, जितने सरप्राइजेस है उतनी अच्छी बात है। क्योंकि आज ये सरप्राइजेस फेस करके 2 घंटे बैठ लेना शांति से अच्छे से दे दिए, तो एक्चुअल पेपर में अगर कोई सरप्राइजेस आते हैं तो भी वहां भी तो वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाओगे, राइट? तो मेक श्योर आप 2 इंस्टीट्यूट के मॉक्स लीजिए, एटलीस्ट मिनिमम 2 से ज्यादा मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ। 2 मॉक, नंबर ऑफ मॉक्स भी बढ़ जाएंगे आपके पास, सेक्शनल्स भी बढ़ जाएंगे। दिस इज ऑल आई हैड टू टॉक अबाउट मॉक्स. Make sure if you haven't started attending mocks, you start as early as possible. Give proper analysis. Don't commit the common mistakes I was talking about. And lastly and foremost, don't be disheartened from your mock scores. Mock scores are something that will gradually get better. अभी शायद नहीं दिखता है कि क्योंकि ये चीज का एक प्रोसेस होती है, तो अगले आप 5-7-8 मॉक्स के बाद जाके वो जंप्स देखेंगे जब 10-15 नंबर के साथ धीरे धीरे, क्योंकि आपका धीरे धीरे सिलेबस भी बढ़ता जा रहा है, आप रिवीजन भी अच्छा कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी अच्छा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप ओवरऑल वे में वर्क कर रहे हैं, तो वो मॉक स्कोर का जंप भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे मोटिवेटेड, ACE-IPM. This is it. Thank you so much for staying till the end. We have, in case you're preparing for IPMAT for 2024, we are having our accelerated batch starting from 29th of March. If you're a 25 aspirant, you can check our Prodigy batch. Both will help you create your entire preparation will make your entire preparation more structured. This is it from my end. Thank you. Bye-bye. ACE-IPM.